हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। Friends, in this video, I'm going to discuss the most important and frequently repeated questions from American literature. These are the questions that are commonly asked in exams and are extremely helpful for focused preparation. मतलब ये ऐसे questions हैं, अगर आप इसे करोगे तो फिर दूसरे जो questions हैं जो मैं यहाँ पे नहीं भी discuss कर रही हूँ वो सारे questions को भी आप attempt कर पाएंगे. And before I start, I want to clarify one important thing to my members. See, I could not create a full marathon video for this subject. However, instead of marathon, I have prepared something equally important for you. So what I have done, I have selected the top 10 most important questions from American literature and created separate notes based videos, okay, for each of them. So all the questions, all 10 questions are properly solved, and this video is uploaded under level 1 membership. फर्स्ट लेवल में इसको अपलोड किया गया है. सो द गुड न्यूज़ इज़ दैट ऑल मेंबर्स इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर मेंबरशिप लेवल कैन एक्सेस दिस वीडियो. तो सिर्फ आप नोट्स के लिए देख रहे हैं तो आप ये वीडियो को देख सकते हैं. अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको स्टोरी, समरी, कैरेक्टर्स के बारे में सब कुछ पता है, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ नोट्स चाहिए तो आप ये वीडियो देख लीजिए. तो जो लोग ऑलरेडी मेंबर्स हैं तो उनको कोई इशू ही नहीं है. सारे के सारे मेंबर्स जो हैं इस वीडियो को देख सकते हैं, और जिन्होंने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो लोग ज्वाइन करके इस वीडियो को देख सकते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर डिस्कशन ऑफ द क्वेश्चंस. सो फर्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट प्योरिटेनिज्म. तो प्योरिटेनिज्म पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं. मतलब अभी तक सारे पेपर में प्योरिटेनिज्म पर क्वेश्चन आए ही हैं. तो कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं? एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच प्योरिटन्स माइग्रेटेड फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका. Write a critical note on the ideology of Puritanism reflected in American literature. With the Puritan migration from Europe to America, there was an emergence of new American culture and literature. So, discuss it. Then next we have The Scarlet Letter by Nathaniel Hawthorne. ये भी बहुत important है. Discuss The Scarlet Letter as a historical romance or love story. ठीक है, या तो हिस्टोरिकल रोमांस पूछ सकते हैं या तो लव स्टोरी. देन ब्रिंग आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ 3 स्कैफोल्ड सीन्स. देन हाउ डज हॉथॉर्न प्रेजेंट प्योरिटन इनटॉलरेंस. या फिर क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, हाउ डज हॉथॉर्न क्रिटिक दिस सोसाइटी. देन नेक्स्ट वी हैव हकलबरी फिन बाय मार्क ट्वेन. देन क्वेश्चन कैसा आ सकता है, व्हाट इज द रोल or significance of the river in Huckleberry Finn. Discuss the twin themes of freedom and slavery in the novel. Then how does Twain use humor as a tool for social criticism? Then next is The Bluest Eye by Toni Morrison. So here the question can come like this: discuss The Bluest Eye as a novel dealing with color, race problems in America. फिर narrative techniques के बारे में भी आ सकता है question. Examine it as protest against white dominance or racism. Then next is Walt Whitman's poetry. Question can come like this: how is nature presented in Whitman's poetry? Discuss Whitman as poet of the self or American individualism. Also critically comment on the influence of transcendentalism on his poetry. Then next we have Hairy Ape by Eugene O'Neill. Discuss the hairy ape as the depiction of men's predicament in इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन. मतलब जो बहुत ही टफ सिचुएशन होता है, डिफ़िकल्ट टाइम होता है वो. देन कॉमेंट ऑन ओनील यूज़ ऑफ एक्सप्रेशनिज्म इन द प्ले. देन एनालाइज इट एज एन एक्सप्रेशनिस्टिक कॉमेडी और ट्रेजेडी. देन क्वेश्चंस ऑन अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी डेवलपमेंट. फर्स्ट इज ट्रेस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी. कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट हेमिंगवे एंड फॉल्कनर एज शॉर्ट स्टोरी राइटर्स. इसको सेपरेटली भी पूछा जा सकता है. देन डिस्कस major concerns of Hemingway in his short story. Then Emily Dickinson's poetry. Discuss death and immorality as major themes in Dickinson's poetry. Is there a feminist voice in her poems? Explain. Write a note on imagery in Dickinson's poetry. Then Adrienne Rich and feminist poetry. Discuss Rich's feminism with reference to snapshots of a daughter-in-law. Then explain her feminist belief with reference to Aunt Jennifer's Tigers. Then American prose evolution. इससे क्वेश्चन आ सकता है लाइक ट्रेस द एवोल्यूशन ऑफ रेवोल्यूशनरी प्रोज या फिर पैम्पलेट राइटिंग अप टू द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस. देन डिस्कस चेंजेस इन अमेरिकन प्रोज ड्यूरिंग और आफ्टर सिविल वॉर. फिर है ह्यूज सेल्विन मॉबेरेली बाय इजरा पाउंड. इससे क्वेश्चन आ सकता है, इज ह्यूज सेल्विन मॉबेरेली फ्रेगमेंटेड और वेल इंटीग्रेटेड पोम.
तो इस पर 2 क्वेश्चन आ सकता है, या तो फ्रेगमेंटेड या फिर वेल इंटीग्रेटेड। देन द एम्परर ऑफ आइसक्रीम बाय वॉलेस स्टीवेंस, क्वेश्चन आ सकता है डिस्कस जॉक्सटापोजिशन ऑफ लाइफ एंड डेथ इन द एम्परर ऑफ आइसक्रीम। तो जॉक्सटापोजिशन मतलब होता है 2 कॉन्ट्रास्टिंग थिंग्स, एकदम ही डिफरेंट चीज़ को एक साथ रखना साइड बाय साइड, ताकि उसके डिफरेंस को और अच्छे से पहचाना जा सके। देन वी हैव मेंडिंग वॉल बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ब्रिंग आउट द आयरनी इन गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, then discuss the link between man and nature in the poem. Then next we have Death of a Salesman by Arthur Miller. क्वेश्चन कैसा आएगा, डिस्कस डेथ ऑफ अ सेल्समैन एज अ मॉडर्न ट्रेजेडी। ठीक है, या तो मॉडर्न ट्रेजेडी पे क्वेश्चन आ सकता है, या फिर डिस्कस डेथ ऑफ अ सेल्समैन एज अ क्रिटिक ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। देन अमेरिकन ड्रामा डेवलपमेंट, इससे आ सकता है trace the growth of American drama during 17th and 18th centuries, then examine 20th century American dramatic form। तो फ्रेंड्स, हम एकदम से नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि यही क्वेश्चन आने वाला है, फिर भी जो मुझे लगा कि ये इम्पॉर्टेंट है, कई साल के क्वेश्चन पेपर्स को जब देखा, एनालाइज किया, तो जो भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है या फिर जो थीम मुझे इम्पॉर्टेंट लगा, मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए, उनको भी हेल्प करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय।